عام انتخابات کی بات کریں گے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ این 231 ضلع ملیر کے دیہی اور شہری علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقے میں 2,43,000 ووٹ ہیں۔ اس حلقے میں لانڈھی کا صنعتی علاقہ، داؤد چورنگی، مانسہرہ کالونی بھی شامل ہے، مگر حلقے کے عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ پانی، بجلی، گیس کے مسائل پورے کراچی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ این 231 ضلع ملیر کے دیہی اور شہری علاقوں پر مشتمل ہے۔ کم و بیش 2.5 لاکھ یہاں پر رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے عاجز جمالی سے، اسی جگہ پہ موجود ہے ملیر میں۔ عاجز بتائیے گا کون کون سے مسائل ہیں یہاں پر؟ جی دیکھیں، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ این 231 ہے۔ لانڈھی کے علاقے داؤد چورنگی پر اس وقت میں موجود ہوں۔ جیسے آپ نے بتایا 2,43,000 سے زائد ووٹرز ہیں، لیکن یہاں پر مسائل وہی ہیں جس طرح کراچی کے شہری علاقوں کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں۔ پینے کے پانی کا یہاں پر بھی فقدان ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھنٹوں تک بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، بلکہ کہیں کہیں پہ مانسہرہ کالونی اور ارد گرد کے علاقوں میں گیس نہیں آ رہی ہے۔ یہاں تھوڑی سی دلچسپ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ کے مقابلے میں کیپٹن جمیل ہیں۔ مسلم لیگ کیپٹن جمیل وہی ہیں جنہوں نے 2018 میں اسی عبدالحکیم بلوچ سے اس نشست پر کامیابی حاصل کی تھی۔ تب کیپٹن جمیل پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ اب کیپٹن جمیل مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی یہاں پر سخت مقابلہ ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کیپٹن جمیل اور جماعت اسلامی، تو ان 3 جماعتوں کا یہاں پہ سخت مقابلہ ہوگا۔ مسائل کے حوالے سے میں یہاں کے شہریوں سے بات کر لیتا ہوں۔ کس طرح کے مسائل ہیں اس ایریا میں؟ یہ مسائل سر جو ہماری پیدائش سے لے کے اب تک جو پہلے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ وہی جیسے بھی آپ نے کہا، نہ لائٹ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، بلز ہیں، بھرمار ہے، سب کچھ ہے، نہ روزگار ہے، نہ لینا نہ دینا۔ یہ ہر لوگ پریشان ہیں۔ یہ بچے جو کل پیدا بھی نہیں ہوتے آج بڑے ہو گئے، لیکن وہی حالت ہے۔ اچھا، اب الیکشن کا زمانہ ہے، لازمی ہے لوگ ووٹ مانگنے آئیں گے آپ سے، ہمیشہ آتے ہیں جی، تو کیا صورتحال ہے؟ سر ووٹ مانگنے تو ویسے ہی آتے جیسے فقیر روزانہ بابا مانگنے کے لیے آتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے، دوبارہ شکل نہیں دکھاتے۔ ان کا بھی وہی حال ہے، آتے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایک عرصے سے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ آل اوور پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہو کیا رہا ہے، سلیکشن ہو رہی ہے، الیکشن تو ہو بھی نہیں رہے۔ اس حلقے سے کیپٹن جمیل جو ہیں پہلے بھی ایم این اے رہے ہیں، حکیم بلوچ بھی پہلے ایم این اے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی رہا ہے۔ کیپٹن جمیل 2018 میں کامیاب ہوا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا کام ہوا کچھ دونوں کے؟ کیا سر بات وہی آ گئی، پیپلز پارٹی جب تک گورنمنٹ میں ہے، سندھ میں ہے، تو دوسرا تو کوئی آ نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں کراچی، لاڑکانہ، داؤد چورنگی کو چھوڑ دیں، اب لاڑکانہ ہی چلے جائیں، ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہاں کا کیا حال ہے۔ میں کچھ اور شہریوں سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ کیا کہیں گے اس علاقے کے مسائل کے حوالے سے، کس طرح کے مسائل ہیں؟ اس علاقے کے مسائل جو ہے نا، یہ 75 سال سے جو ہے یہ باری باری لیتے اور یہ مسائل ختم نہیں ہوتے۔ لوگ ان کو سرما لگاتے الیکشن کے دور میں کہ بھائی تمہارے لیے ایسے کریں گے، ویسے کریں گے۔ ابھی میں نے کل رات کو ایک دیکھ رہا تھا کہ پی کے میں ایک پٹھان کھڑا ہے، کہ پی کے کا سسٹم جو ہے یہاں کی بات کریں، داؤد چورنگی اور لانڈھی کے مسائل کی بات کریں۔ بات کر رہا ہوں نا، لیکن یہ سیاستدانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 300 یونٹ فری ملے گا۔ یار اللہ کی قسم، سن کا حالات جو میں نے دیکھا، ادھر 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے۔ عمران خان کے دور میں ادھر 4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا، 20 گھنٹے بجلی ہوتا تھا۔ آپ کیا کہیں گے بابا، یہاں کس طرح کے مسائل ہیں آپ کے علاقے میں؟ پینے کا پانی آتا ہے؟ پینے کا پانی آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ آپ بتائیں، پینے کا پانی آتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، پانی نہیں آتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹائم میں اتنا نہیں تھا، جب سے یہ سسٹم خراب کیا تھا ابھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں، آپ آ جائیں، کیا کس طرح کے مسائل ہیں یہاں پر؟ یہاں تو مسائل بہت ہیں، اور جو پانی کا گیر ہے نا، الحمدللہ فیچر کالونی میں 24 گھنٹے پانی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ، اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے نا، جب پی ٹی آئی کا دور تھا تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اب بھی لوڈ شیڈنگ ہے، ہمیشہ رہتی رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ ابھی شروع ہوئی ہے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، اس سے پہلے گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔
میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے. یہ لانڈھی, داؤد چورنگی, منسیرہ کالونی, ان علاقوں کے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کی بات کر رہے تھے. سیاسی باتیں, سیاستدانوں سے لوگ خفا عاجز جو نظر ہم آ لوگوں رہے کی ہیں. باتیں لیکن سن رہے ہیں اور جو ان کے ویوز ہم دیکھ رہے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ وعدوں اور دعووں سے یہ عوام اب پگھلنے والی نہیں ہے. عاجز, میں نے کہا کہ جس طرح آپ نے بات کی لوگوں سے, جو ویوز ان کے تھے اور جس طرح کے منشور بھی بات میں منشور بھی بیان کیا گیا, تو نظر یہی آ رہا ہے کہ عوام اب پگھل نہیں رہی باتوں اور وعدوں پہ. جی دیکھیے, یہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو سیاسی منشور بھی جاری ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے وعدے بھی ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے الیکشن کا پروسیس ہے. الیکشن تو ہونا ہے 8 فروری کو جو تاریخ ہوتی ہے اس پہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور ووٹ بھی ڈلتے ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, کہیں زیادہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال الیکشن کے زمانے میں ووٹ ڈلتے ہیں. مختلف سیاسی جماعتوں کے یہاں, جیسے میں نے شروع میں بتایا, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم نے یہاں پہ اس کا کوئی امیدوار نہیں ہے. صوبائی اسمبلی پہ بھی یہاں پیپلز پارٹی کے مزمل شاہ ہیں, اور اسی حلقے سے جو میں جہاں پہ اس وقت موجود ہوں, جبکہ قومی اسمبلی کے عبدالحکیم بلوچ ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کے, ان کے مقابلے میں کیپٹن جمیل ہیں. فیروز خان مسلم لیگ نون کا, یہ PS 88 ہے, فیروز خان مسلم لیگ نون کا اس سے مقابلہ کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹر کس طرف جاتے ہیں. میں پھر کچھ ووٹر سے بات کر لیتا ہوں. ووٹ کیا صورتحال ہے, لوگ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں؟ ہاں, لوگ تو بہت آ رہے ہیں. کس کو دینا ہے ووٹ؟ ہم نے تو دینا ہے نواز شریف کو. اچھا, ہاں, لیکن یہاں پہ کون ہے اس کا, نواز شریف کا امیدوار؟ یہاں پہ وہ کیپٹن جمیل اور MP جو ہے فیروز خان ہے. آئے تو نہیں ابھی تک, دیکھتے ہیں آئیں گے تو ووٹ دیں گے بھائی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں اچھا نظام ہو. غریب کا خون چوس رہے ہیں بھائی, کیا کرے گا غریب؟ ملک میں اچھا نظام ہو, غریب کے لیے کچھ ہو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب کے لیے کچھ ہونا چاہیے, لیکن غریب کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے. اچھا عاجز, ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. الیکشن کمیشن نے 17 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی ہاں, یہ ضابطہ اخلاق پہلے بھی جاری کیا تھا, پھر دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضابطہ اخلاق کو ریپیٹ کیا ہے. 17 نکاتی ہے, جس میں خاص طور پہ میڈیا کے لیے کچھ ضابطے ہیں, کچھ پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے ضابطے ہیں. میڈیا کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے تک نتائج جاری نہیں کرنے ہیں, اور نتائج جب جاری بھی کرنے ہیں تو اس میں یہ کہہ دینا ہے کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے. اور میڈیا کے لیے ایکسس دیا گیا ہے, ایک بار صرف ایکسس دیا گیا ہے کیمرے کو, ایک TV چینل کو, جبکہ جو گنتی کا عمل ہے بتایا گیا ہے ضابطہ اخلاق کے مطابق کہ ووٹ کے گنتی کا عمل کیمرے کے بغیر کور کیا جائے گا. اس کے علاوہ غیر ملکی مندوبین کے حوالے سے بھی ضابطہ اخلاق ہے کہ جن کے لیے ایکریڈیشن کارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کرے گا, وہی لوگ پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کے جائزہ لے سکیں گے. یہاں پہ ضابطہ اخلاق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی مرضی ہے کہ وہ اگر کسی کا کسی وقت بھی پاس یا کارڈ یا اس کا دورہ کینسل بھی کر سکتا ہے. ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتوں کو 10 دن پہلے اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایفیلیشن جو ہے, وابستگی ہے, وہ ظاہر کرنی ہے, جبکہ 48 گھنٹے قبل الیکشن مہم جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو بہرحال اس میں اور نکات بھی ہیں جو کامن نکات ہیں جو ہر دور میں الیکشن میں ہوتے رہتے ہیں. خصوصی طور پہ اس میں مندوبین اور میڈیا کے لیے کافی یہاں پہ کچھ نئی باتیں اس ضابطہ اخلاق میں سامنے آ رہی ہیں. ضابطہ اخلاق میں میڈیا کے لیے کافی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اور پہلے مہم ختم کرنے کا وقت 24 گھنٹے پہلے ہوتا تھا, اب 48 گھنٹے کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ عاجز, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. PS 87 ابراہیم حیدری میں علاقہ مکینوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. واٹر بورڈ کی لائنوں میں گندا پانی آنے کی شکایات ہیں. بات کریں گے خورشید رحمانی سے, بتائیے گا. جی اس وقت موجود ہیں ابراہیم حیدری کے علاقے میں, اور PS 87 کا علاقہ ہے. عام انتخابات 2024 ہونے جا رہے ہیں, لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کب ہوں گے. اور یہاں ہم اس ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں
पीने का साफ पानी नहीं है, लोगों को गैस और बिजली मैसर नहीं है। मेरे साथ इसी इलाके की एक खातून मौजूद हैं और वो अपने मसाइल सिटी 21 को बता रही हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मोहतरमा ये बताइएगा कि आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग का बेटा बिजली का, पीने का पानी का, गटर लेन का, गैस का बहुत मुसीबत है। साफ पानी पीने का नहीं आता है। गटर वाला पानी देखो, बदबू देखो इसमें, तुम नलके का पानी से गटर का बदबू का पानी आता है। हम तो भर भर के हम लोग को तो बीमार हो गया, घुटने में दर्द हो गया, छाती में दर्द हो गया, बाल्टी उठा के सिर में दर्द हो गया, हम कहाँ जाएंगे। ये वो पानी है जिसमें गटर की बदबू है, गंदा पानी है और इसमें बदबू है जो मुजरे सेहत है और इससे मोहलिक बीमारियां लगने का खतरा है। और ये खातून भी कई अरसे से बीमार हैं और शिकवा कर रही हैं कि यहाँ के इलाका मकीन जो अब आइंदा 2024 के इंतखाब में यहाँ से जो भी सियासी उम्मीदवार इलेक्ट हों तो वो इस इलाके के मसाइल को हल करें और इस इलाके का जो दर्द है वो सुने और दर्द रखने के साथ साथ इस इलाके के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता इलेक्शन में अपनी खोई हुई कौमी असम्बली की नशिस्त हासिल करने के लिए तैयार है। NA 239 से पीपल्स पार्टी के सरदार नबील गबोल मैदान में उतरेंगे। उनका कहना है कि गुज़श्ता इंतखाबात में हमसे ये नशिस्त छीनी गई थी। मजीद बताएंगी नम्रा रियासत। 4 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है हल्का NA 239, जहाँ बेशुमार मसाइल हैं जो सियासी गहमा गहमी अब आम इंतखाबात के हवाले से हम देखते हैं उरूज पर नज़र आती है। और जो इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सरदार नबील गबोल साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मज़ीद इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, इंतखाबात आने वाले हैं, इस हल्के के बेशुमार मसाइल भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं, क्या लगता है जो लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है आपकी जानिब इंतखाबात के हवाले से? देखिए, मैं 10 साल के बाद दोबारा आया हूँ, मतलब था लियारी के अवाम में, लेकिन इलेक्शन 10 साल के बाद लियारी से लड़ रहा हूँ और ये मैं आया हूँ पब्लिक के डिमांड पर। और पब्लिक ने जो है ये उनको पता था कि जो मैंने काम किए हैं, जैसे मैंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज बनाया, तो ये मेरे काम लोगों को नज़र आ रहे थे। बेशुमार नौकरियाँ दी हैं नौजवानों को, तो मसाइल अब बहुत है। मेरे पीछे 10 साल जो MNA थे वो नाकारा थे, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ये जो पिछला 5 साल गुजरा, आपने देखा कि हमारे सीट को चोरी किया गया RTS का बुनियाद बनाकर और हमारी सीट ले लिया हमसे। मसाइल तो गंभीर है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी मसले हल किए हैं। 2.5 अरब का पैकेज बिलावल साहब ने दिया है, जिसमें यहाँ पर हमने काफ़ी इलाकों में रोड्स बनाए हैं। अच्छा, ये बताइएगा 2018 के इंतखाबात हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी यहाँ से सीट हासिल नहीं कर सकी। अब आप कह रहे हैं कि लोगों की हिमायत आपके साथ है, तो क्या फीडबैक है लोगों का इस हवाले से और अब इंतखाबात में आपको उम्मीद है कि आप यहाँ से कामयाबी हासिल? मुझे पूरा 100% यकीन है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता चल रहा हमारा मुकाबला है किसके साथ। यानी आप पूरी लियारी में घूमें तो आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी के झंडे नजर आएंगे। तो हमारा मुकाबला जो है इन लोगों के साथ है जिन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया। यकीनी तौर पर 100% अवाम जो है इनको लगता है कि साथ है और लियारी से एक बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ से सीट हासिल करेंगे और यहाँ के तमाम मसाइल जो बुनियादी मसाइल है, जिनमें गैस और सेवरेज का जो एक नाकारा निज़ाम यहाँ पर है, उसको हल करने के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। जी। और PS 109 में भी बेशुमार मसाइल हैं। गैस की अदम दस्तयाबी, बिजली की लोड शेडिंग, टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत बन गई हैं। मजीद बताएंगे फरहान खान। जी बिल्कुल, इंतखाबात की गहमा गहमी जो उरूज पे है, इस वक्त जो मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 240 PS 109 के अंदर मौजूद हूँ। इस इलाके के अगर मैं वोटर्स की बात करूँ तो 2,24,000 से ज़ायद वोटर्स पर मुश्तमिल ये इलाका है, लेकिन बुनियादी सहूलियात जो है वो ताहाल तलब हैं। इस हल्के से अगर मैं उम्मीदवारों की बात करूँ तो कौमी असम्बली की नशिस्त से उम्मीदवारों की हैसियत से पीपल्स पार्टी से सलीम मांडवाला और MQM के जो है वो अरशद बहरू इस हल्के से जो वो उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए हैं। लेकिन जो है मसाइल बेशुमार है। इस वक्त जो है वो कुछ इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइएगा, इस वक्त जो है वो इंतखाबात की गहमा गहमी जो उरूज पे है, और मसाइल क्या क्या हैं इस इलाके के? इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके सामने, रोड टूटा हुआ, और क्या क्या मसले हैं? इसके मसाइल ये देख लो, रोड टूटा हुआ है, हम लोग बेरोज़गार घूमता पड़े, तकरीबन 15 दिन से बेरोज़गार है, कोई काम पे भी नहीं रखते। अपना खाली गहमा गहमी है इसका इलेक्शन का। आवाम को तो पूछो कोई क्या मसला है इधर। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सारे मसला हैं। अब पानी इधर बरसात होएगा तो पानी देखना इतना इतना पानी आ जाएगा। 20 दिन कौन हो होगा? बताइएगा, पिछले इंतखाबात में किसको वोट देके इस हल्के से मुंतखब किया था और अब जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें किसको वोट देंगे? कादिर पटेल PP का था, उसने क्या किया हम लोग के लिए?
ये हालत देखो तो पत्थर देखो कटे कटे हैं, देखो सुजुकी घूम रहे। अब हम लोग किसको देंगे अभी वोट? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो इलाका मकीन हमारे हमरा मौजूद थे। वो खासा जो है वो नाराज़गी का इज़हार कहते हैं कि पिछले इंतखाबात में भी जो है वो मैंडेट दिया था पीपल्स पार्टी को, लेकिन जो है वो मसाइल जो है वो उनके हल नहीं हुए। इस बार जो है वो नाउमीदी का इजहार है, वोट किसको देंगे अभी तक किसी को उम्मीद नहीं है। जी। और NA 238 पाकिस्तान क्वार्टर्स में भी बिजली और गैस की अदम फराहमी की शिकायत है। इलाके में एक पार्क भी मौजूद है जो सालों से इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। अयाज राना वहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं NA 238 और उसकी PS 102 में मौजूद हूँ। यहाँ के जो वोटर की अगर हम तादाद की बात करें तो वो 2,47,008 फरवरी को अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मैं पाकिस्तान क्वार्टर्स में मौजूद हूँ। यहाँ के क्या मसाइल हैं उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे इलाका की जो ख़वातीन हैं वो बाहर आई हैं और वो ख़ुद अपनी ज़बानी बताना चाहती हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। अहम मसला ये न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है। यहाँ पे ये पार्क 2010 में MQM ने बनाया था, मुत्तहिदा ने। अभी भी हमारा वोट मुत्तहिदा को ही होगा क्योंकि मुत्तहिदा ने यहाँ पे काम कराया, अदरवाइज़ किसी और पार्टी ने नहीं कराया। वोट लेने आ गए, सब कुछ ये आपके सामने हाल है। एक मसला जो हमारे सामने पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का आया वो है पार्क का मसला, जो कि 2010 के बाद उसकी कोई इसको देखभाल नहीं की गई। आप बताइए कि और क्या मसला है आपके इलाके? भाई हमारे मसला पाकिस्तान क्वार्टर में सबसे बड़ा मसला है कि 16 घंटे लाइटें नहीं होती हैं, बिजली के गैस नहीं होती है, बच्चे पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, खाने पीने से महरूम हो रही है। हर मतलब आने वाली नस्लें ख़राब हो रही हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, जैसे पढ़ाई के हवाले से भी। आपके हाथ में बिजली का बिल नज़र आ रहा है, आप किस मसले में बात? भाई इसी बात पे बात उठाऊंगी मैं भी, ये बिजली के वजह से, क्योंकि बिजली होती ही नहीं है और ज़ाहिर सी बात है काम पे जाने वाले जो होते हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं। उनको नाश्ता पानी नहीं मिलेगा तो क्या भूखे जाएंगे। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा यहाँ की जितनी भी सियासी जमातें हैं कि वो किस तरह से कराची वालों को मुतमईन कर सकेंगे कि वो उनको गैस और बिजली की फराहमी जो है बिला तातुल मिल सकेगी। जी। और नून लीग लियारी से मैदान मारने के लिए तैयार है। NA 240 से उम्मीदवार सकीना अनवर ने लियारी वालों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। इस हवाले से काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखें नून लीग भी कराची की सियासत में भरपूर दिलचस्पी का इजहार कर रही है। हम देख रहे हैं कि NA 240 में नून लीग ने सकीना वो टिकट जारी किया है, उस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जहाँ तक नून लीग का सपोर्ट, तो यहाँ से पहले नून लीग का कोई सपोर्ट के नून लीग यहाँ से कोई खड़ी ही नहीं हुई। जो लोग भी आते रहे यहाँ पर, जैसे पीपल्स पार्टी रही है पहले माजी के अंदर, लेकिन यहाँ लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, क्योंकि जो लोग भी यहाँ से इंतखाबात में खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, वो अपना वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन वोट मांग के उनका पता ही नहीं हो, क्योंकि वो इस एरिया के नहीं हैं। ठीक है, वो इलेक्शंस हुए, आए, वोट लिया, बातें बड़ी बड़ी करके चले गए। अब चूँकि मैं खुद इस एरिया की हूँ, मुझे 15 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए, यहाँ के लोगों के मसाइल देखते हुए कि यहाँ पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, हर चीज़ का मसला है। इवन हमारे हुक्मरान रहते तो समंदर के पास है, लेकिन लोग यहाँ पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो असल मेरा विज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि चूँकि मैं इनके इर्द गिर्द ही मौजूद हूँ, तो मैं कामयाब हूँ और उनके सारे मसाइल को हल कर सकूँ, क्योंकि मुझे इनके एक एक चीज़ का पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मेरे ख्याल से अब की आवाम को निकलना चाहिए वोट डालने के लिए और उस हुक्मरान को, मतलब उस कैंडिडेट को जिताना चाहिए जो इनके इर्द गिर्द मौजूद हो, इनके वसाइल को पहचानता हो, वो उसको जानता हो और वो उनको जानते हो। मेरे साथ नून लीग की कैंडिडेट मौजूद थे, उनका कहना है कि भरपूर तैयारी के साथ नून लीग मैदान में उतरेगी और लियारी के जो अवाम है वो इस बार नून लीग को सपोर्ट करें ताकि जो यहाँ के मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। जी। इंटर हिस्सा अव्वल के नताइज में तलबा और तालिबात की अक्सरियत के फेल होने का मामला। तलबा और तालिबात के एहतजाज पर महकमा तालीम ने कमेटी बना दी है। बात करेंगे आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने कराची बोर्ड के तहत इंटर साल अव्वल के नताइज में तलबा और तलबात की अक्सरियत के फेल हो जाने के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि इस कमेटी में कराची के किसी भी प्रिंसिपल या सीनियर प्रोफेसर को शामिल नहीं किया गया है। कमेटी नताइज की अज्जा के तकरीबन 10 रोज के बाद कायम की गई है और इंटर साल अव्वल प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग समेत दीगर फैकल्टीज में फेल होने वाले तलबा अपने नताइज के मामले पर सरापा एहतजाज भी है। कमेटी के हवाले से सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन सदर शेख के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मजीद अरकान को भी अपना हिस्सा बना सकती है, जबकि कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी, कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक है आयमा, आपने हमें अपडेट किया।
मैट्रिक बोर्ड कराची ने 9वीं जमात के लाखों तलबा को फेल कर दिया। इम्तिहानी नताइज मुतनाज़ बनने लगे। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ने सारा साल मेहनत की, ऐसे नताइज काबिल कबूल नहीं है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। देखिए, इस वक्त मैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ और 11वीं जमात के नताइज पर तो हम ये देख ही रहे हैं कि तलबा व तालिबात की जानिब से अदम इत्मीनान का जो है इजहार किया जा रहा है। 11वीं जमात के जो नताइज जारी किए गए थे इंटर बोर्ड कराची की जानिब से, तो इस वक्त मेरे साथ 9वीं जमात के एक तलबा मौजूद है जिनका ये शिकवा है और इनका ये कहना है कि इनके पर्चे बहुत अच्छे तरीके से मुनक्किद हुए थे, लेकिन जो मार्कशीट पर इनको ये नंबर्स दिए गए हैं तो ये वो नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ पासिंग ग्रेड है। और इनका ये एक दावा है कि ये हाई परसेंटेज गेन करने वाली तलबा है। तो इनसे जानते, मुझे बताइए पेपर कैसा आया था और ये जो इतनी ताख़ीर से ये नताइज जारी किए गए हैं लेकिन फिर भी आपको सिर्फ पास कर दिया गया, क्या कहेंगे इसके हवाले से? पेपर तो बहुत आसान आया था लेकिन ये रिज़ल्ट जो है वो अनफेयर बना है, बहुत ज़्यादा ही। मैं तो ये रिज़ल्ट डिज़र्व नहीं करती और जिनसे एक्सपेक्ट नहीं थी उनका तो इतना हाई रिज़ल्ट आया और मुझे तो अपने आप से बहुत उम्मीदें थी और मेरा बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिज़ल्ट से, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है अपने रिज़ल्ट से। इनकी वालिदा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बकौल इनके कि इन्होंने बहुत दफ़ा जो है बोर्ड के चक्कर काटे हैं। मुझे बताइए, ये मार्कशीट आप बोर्ड ऑफिस लेकर आए, इंतज़ामिया ने क्या कहा आपको? इंतज़ामिया ने यही कहा मुझे कि 8 नंबर कमरे में आमिर भाई ने ये बोला कि मार्कशीट आ जाए, जबकि आप जो है ना लेकर आइएगा। अब मैं लेकर आई हूँ तो मुझे कहते हैं कि मतलब क्लेम फॉर्म भरवाएं। ये बच्ची जब से रिज़ल्ट आया जब से ये रोए जा रही है, मतलब इनकी वजह से इनका एक मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है। मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है। आला हुक्काम को नोटिस लेने की ज़रूरत है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैट्रिक बोर्ड कराची जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये मौक़िफ़ देकर टाल देता है और भी हमें ऐसे मामला देखने को नज़र आए हैं जो कि तलबा व तालिबात 9वीं जमात के नताइज से मुतमईन नहीं हैं। जी, मुल्क के बालाई इलाकों में धुंध और ख़राब मौसम की वजह से आज कराची से कुछ गाड़ियाँ ताख़ीर का शिकार हैं। आपको बताते चलें कि ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा धुंध का राज है, जिसकी वजह से ट्रेन शेड्यूल जो है वो मुतासिर है। और आज आपको ये भी बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में धुंध है और ख़राब मौसम है, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ ट्रेन ताख़ीर का शिकार हैं। 20 साला तानिया की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी, देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। वहीं पर 20 साला तानिया की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहाँ पर SSP इन्वेस्टिगेशन भी जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। दौरान समाअत जस्टिस नेमतुल्लाह परपोटो ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि लापता बच्ची लड़की जो है तानिया, उसका कोई सुराग मिल सका या नहीं मिल सका, जिस पर SSP इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया कि लड़की की तलाश जारी है, उम्मीद जल्द से जल्द जो है बाज़ाब कराया जाएगा। जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसरान पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा है कि 3 तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश होते हैं लेकिन लड़की के बारे में, लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं देते। क्या हम IG को यहाँ बुलाएं या DIG को यहाँ बुलाएं, फिर अच्छा रहेगा। लिहाजा तफ्तीशी अफसर ने अदालत में यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द से जल्द जो है बच्ची को बाजियाब कराएंगे। आज दरख्वास्त गुजार जो हैं लापता जो लड़की है उनके अहल खाना भी अदालत में पेश हुई। उनका यही कहना है कि 2 माह हो चुके हैं, उनकी बच्ची जो है वो लापता है, कहाँ गई है, किसने अगवा की है, ताहाल कुछ पता नहीं चला। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है और इस दरख्वास्त की समाअत भी जो है आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी है। पीपल्स चौरंगी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। SHO इम्तियाज शाह के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी के नतीजे पर पेश आया। अनुषा जाफरी से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रात गए जो है वो पीपल्स चौरंगी पर जो है वो जमशेद थाने की हदूद में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में फ़हीम नामी शख्स जाबाक हो गया है। मामला क्या है बताया जा रहा है, ज़ाती दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। SHO जाए वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और CCTV जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, वाक़या ज़ाती दुश्मनी का बताया जा रहा है, CCTV कलेक्ट कर रहे हैं, वैसे क्या मामला था? ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ज़ाती दुश्मनी है, क्योंकि इसके 4 केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, 4 केसेस हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। तो हो सकता है कि इसका वहीं से आ गया कोई इसके पीछे, क्योंकि इसके भाई ने मुझे बताया, नदीम ने, कि इसको धमकियाँ वैसे मिलती रही हैं पहले। 2 गोलियां लगी हैं इसको, एक हाथ में और एक इसके पेट में। CCTV कलेक्ट कर रहे हैं आप? CCTV कलेक्ट कर रहे हैं, अल्लाह करे कहीं मिल जाए जवाब। लगता है ऐसा है गोली इसको पीछे लगी है, यहाँ आके गिरा है ये, और यही मालूमात में लगे हुए, इंशाल्लाह हो जाएगा कवर। जी बिल्कुल,
जो इम्तियाज़ जो है वो जाए वक़्त पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये वाक़या जो है वो पेश आया, पुलिस की मोबाइल भी यहाँ पर पहुँची हुई है और कहा यह जा रहा है कि इसके केसेस चल रहे थे प्रॉपर्टी के हवाले से कोर्ट के अंदर और उसको धमकियाँ भी जो है वो पहले से दी जा रही थी और कहा यह जा रहा है कि फायरिंग जो है वो थोड़ा पीछे की जानिब जो है मुमकिन तौर पर हुई है और यहाँ पर आकर वो ज़ख्मी होकर गिरा है। इस हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। 2 उसको जो है गोलियाँ मारी गई हैं। वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी के नतीजे में पेश आया है। वाक़ये का मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। जी, कस्टम्स एहलकारों का अरबों की स्पीड मनी के एवज स्मगलिंग की इजाज़त देने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने मुलविस कस्टम अफसर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बात करेंगे इस हवाले से खुर्शीद रहमानी से। जी, कस्टम एहलकारों का अरबों की स्पीड मनी एवज स्मगलिंग की इजाज़त देने के स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस तरह से FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल ने मुलविस कस्टम अफसरान के खिलाफ स्पीड मनी से जायदाद और गाड़ी खरीदने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। कस्टम एंटी स्मगलिंग इन्फोर्समेंट के सीनियर प्रिवेंटिव सुपरिटेंडेंट तारिक महमूद ने जायदाद और गाड़ियां अपने नाम समेत एहलिया और दीगर अहले खाना के नाम खरीदी। खरीदारी के लिए करोड़ की रकम जो है स्मगलिंग में मुलविस मुलजमान से मुख्तलिफ बैंक अकाउंट के जरिए हासिल की गई। तारिक महमूद ने स्मगलर से 5 करोड़ से ज्यादा की स्पीड मनी और अपनी जाती अकाउंट में मुंतकिल किए। AML सर्किल ने ये FIR एंटी करप्शन सर्किल की पहले से दर्ज FIR के तस्वीर में दर्ज की गई है। इस स्कैंडल में एंटी करप्शन सर्किल ने कस्टम के आला तरीन अफसरान बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। शहर में जराइम और लूट मार की वारदातें ना थम सकें। गुलशन हदीद फेज़ 1 कमर्शियल मार्केट के ताजरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर लिए। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज पूरे शहर कायद में जो बढ़ती हुई जराइम की वारदातें हैं उसकी वजह से कारोबारी मराकज़ भी जो हैं वो शदीद मुतासर हैं और ताजिरों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन हदीद फेज़ 1 की कमर्शियल मार्केट में और यहाँ पे तकरीबन 400 से ज़ायद दुकानें हैं और यहाँ पर भी जो ताजिर हैं उन्होंने लूट मार की जो वारदातें हैं उससे जो है वो बचने के लिए अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया हुआ है बल्कि यहाँ पर पुलिस एहलकार भी जो हैं वो तैनात हैं और यहाँ की जो ताजिर बरादरी हैं उनकी जानिब से जानते हैं उनका मौक़िफ़ के किस तरीके से यहाँ पर लूटमार की वारदातें होती थी और क्या इंतजाम आप लोगों ने किए हैं। सर्दियों की पिछले साल की बात है, सर्दियों की रातें थी तो उसमें डकैत आते थे, ताले तोड़ते थे, ताले तोड़ के पूरी दुकानें लूट के चले जाते। उस टाइम पे हमारे इलाके में पाकिस्तान स्टील मिल की सिक्योरिटी थी तो हम सारे ताजिर भाइयों ने शटर डाउन करके धरना दिया स्टील मिल ऑफिस में, जो डिपार्टमेंट है उनका सिक्योरिटी उधर धरना दे कि हमने मुतालबा रखा हमें स्टील मिल की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो हमारे बिलों में पेमेंट काटी जाती थी तो उसको हमने बिल्कुल ख़त्म करवा के फिर इधर हमने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी रखी और SSP साहब से मुतालबा किया। चाहते हैं कि और 2-3 नफरी भराई जाए इस मार्केट में क्योंकि 800-900 दुकानें इस मार्केट में कमर्शियल मार्केट है और पूरी ज़िला मलीर की नुमाइंदगी करती है मेन कमर्शियल मार्केट। इसलिए हम मुतालबा करते हैं और नफरी भराई जाए और ताकि अमन व अमान बहाल रहे। कमर्शियल मार्केट है जो कि पूरे मलीर की है सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट जो है वो तस्वीर की जाती है तो यहाँ के ताजिरों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर पुलिस की जो है नफरी